students, how are you all? Hope you all are fine. Last class we have started the history first chapter, that is French Revolution, and we have discussed the subsistence crisis. What we have discussed? We have discussed about Louis XVI, 16th king of France, and his empty treasury and regions of his empty treasury. And further we have discussed the subsistence crisis, a crisis where basic means of livelihood are not available. Now today we are starting with the heading a growing middle class and end of privileges. Okay. Today we used to say that we belong to a poor family, that belong to a rich family, and this person belongs to a middle class. Middle class means in between class. They are not so poor and they are not so rich. So this concept of middle class came from the France, okay, during the 18th century. Now what is middle class? Middle class means we have discussed that the French society was divided into three different states: clergy, nobility and third estate. Third estate peoples include poor peoples means बिल्कुल ही जिनके पास अपना लैंड नहीं है, most poor people, plus third estate also includes some educated people, doctors, lawyers, plus traders, manufacturers. So during 18th centuries, these educated peoples or these traders or manufacturers slowly he went on manufacturing through trade routes, sea routes. They developed, ठीक है, धीरे धीरे डेवलप होने लगे. They started earning wealth, and by started earning wealth, they started getting education. They started giving education to their children. ठीक है. So during the 18th century, when there was subsistence crisis, when there was a division in the society, so there started revolts. In early times, poor people started raising their voice against the kings, but slowly they lost the means. Why they lost the means? Means poor people जो है काम छोड़ के दे जो बहुत ज्यादा समय तक वी कांट से कि वो रिवॉल्ट करने बैठ सकते हैं. तो कुछ दिनों तक पुअर पीपल्स ने वॉइस रेज किया, फिर उन्होंने ये काम किसको पे छोड़ दिया? अपने थर्ड स्टेट के उन लोगों पे छोड़ दिया जो उनसे कंडीशन में बेटर है. मींस इन मिडिल क्लास लोगों पे छोड़ दिया जो उनसे बेटर है कंडीशन में. तो हियर डिवीजन इन द थर्ड स्टेट इनटू टू, मतलब थर्ड स्टेट भी दो पार्ट्स में बढ़ गया, दैट इज पुअर पीपल एंड अदर क्लासेस मिडिल क्लास. ठीक है. तो हियर द कंसेप्ट के मिडिल क्लास. तो पुअर पीपल्स ने स्टार्ट किया वॉइस रेज करना. स्लोली दे स्टॉप प्रेजिंग द वॉइस, बिकॉज अगर वो रिवॉल्ट करने बैठ जाएंगे तो उनकी फैमिली को कौन फेड करेगा. तो फाइनली दिस वर्क ऑफ रिवॉल्टिंग और रेजिंग वॉइस अगेंस्ट द किंग्स वेंट टू द people of third state, that is middle class people of the third state, and here comes the concept of middle class, that is doctors, lawyers, educated. अब जैसे जैसे मिडिल क्लास लोग जो है एजुकेटेड होने लगे ना, तो उनको सही और गलत में फर्क नजर आने लगा. मीन्स they understand that why we should give by birth privileges. जो क्लर्गी पीपल्स को by birth privileges टैलेंट्स दे रहे थे, प्लस जो सोसाइटी को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, तो दे स्टार्टेड रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट दैट कि क्यों सोसाइटी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो वी शुड ऑल be equal, should have equal access to rights. ठीक है. तो they starting demanding that, they started revolt, और उनके इस आइडिया को सपोर्ट किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के फिलोसोफर्स ने. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द रोल ऑफ फिलोसोफर्स इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 3 मार्क्स में भी आता है, 5 मार्क्स में भी आता है. नोटबुक में आपको करना है, होमवर्क में साथ साथ देती जा रही हूँ आपको. तो व्हाट इज द रोल ऑफ फिलोसोफर्स इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो उनके इस आइडिया को सपोर्ट किया फिलोसोफर्स ने. कौन कौन से फिलोसोफर्स? 3 फिलोसोफर्स के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा. दैट इज जॉन लॉके, जीन जैक्विस रोज्यू, बेसिकली रोज्यू बोला जाता है उनको, और मॉन्टेस्क्यू. इन 3 फिलोसोफर्स ने मिडिल क्लास में जो ये आइडिया आ रहा था कि ऑल आर इक्वल इन द सोसाइटी, नो बाय बर्थ प्रिविलेजेस, इन 3 फिलोसोफर्स ने फर्दर इस आइडियाज को सपोर्ट किया, स्ट्रेंथन किया और स्ट्रॉन्ग बनाया. कैसे बनाया? इन राइटर्स ने अपनी जो इन्होंने बुक्स लिखी उसमें फर्दर जो है उनको नए आइडियाज दिए कि क्या गलत है क्या सही है, और उनको जो है मिडिल क्लास लोगों ने अडॉप्ट किया एंड फर्दर डिस्कस द आइडियाज ऑफ फिलोसोफर्स एंड मेक देयर रिवॉल्ट मच स्ट्रॉन्गर. अब किसने क्या आइडिया दिया? जॉन लॉके, जो कि फर्स्ट फिलोसोफर थे, उन्होंने बुक लिखी थी. उनकी बुक का नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट. ये बुक का नेम है बेटा, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट. अब अपनी इस बुक में उन्होंने क्या रिफ्यूज किया? डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क. उन्होंने कहा कि सारी पावर एक इंसान के हाथ में होना, ठीक है, दैट इज रॉन्ग. मतलब टोटल जो डिसीजन है सिर्फ मोनार्क ले रहा है, और जो सब्जेक्ट्स है, जो जनरल पब्लिक है, उनके पास कोई राइट नहीं है.
कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। तो दिस थिंग ही मेंशन्ड इन हिज बुक के डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट नहीं होना चाहिए। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन मींस राजा का बेटा राजा बनेगा, तो इस चीज को अबॉलिश किया जॉन लॉक ने अपने बुक में कि कैपेबिलिटी के बेस पे पावर मिलनी चाहिए, कि जिसमें कैपेबिलिटी उसको पावर मिलनी चाहिए, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। और दूसरी बात, एक ही इंसान के हाथ में राइट्स नहीं होनी चाहिए, राइट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो दिस आइडिया इज गिवन बाय फिलोसोफर एंड दैट इज अडॉप्टेड बाय द मिडिल क्लास पीपल। सेकंड है फिलोसोफर जी जैक्यूस रोज्यू ने बुक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज द नेम ऑफ द बुक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रिटन बाय रोज्यू। उन्होंने अपनी बुक में क्या किया कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए दैट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव बेस्ड, मींस जो आज हम डेमोक्रेसी में कैसे करते हैं कि जनरल पीपल यूज टू वोट फॉर द गवर्नमेंट, वन पर्सन वन वोट इक्वल वैल्यू के बेसिस पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। तो डेमोक्रेसी के कंसेप्ट का आइडिया, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां से आई? फ्रांस से आई, रोज्यू से आई। रोज्यू ने आइडिया दिया कि वन पर्सन वन वोट होना चाहिए, वोटिंग के आधार पे जो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, जनरल पब्लिक के कुछ मेंबर्स एग्जीक्यूटिव बॉडी पे या गवर्नमेंट बॉडी पे या पार्लियामेंट में होने चाहिए। तो इस तरीके से वन पर्सन के पास जो है पावर न होकर जो है पावर जो है वन पर्सन वन वोट के हिसाब से होनी चाहिए। तो दिस वाज आइडिया गिवन बाय रोज्यू। मैंने ये बताया कि इंडिया ने और बहुत सारी कंट्रीज ने फ्रांस से बहुत सारा कुछ अडॉप्ट किया। तो ये जो सारी चीजें जो है आज इंडिया में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे डेमोक्रेसी में, तो ये मेनी आइडियाज केम फ्रॉम द फ्रांस। ठीक है, मिडिल क्लास केम फ्रॉम द France, these ideas of one person, one vote, equal rights, ठीक है, this came from the France. And the third philosopher was Montesquieu. Montesquieu ने बुक लिखी थी The Spirit of Law. This is the name of the book written by Montesquieu. और अपनी बुक में उन्होंने क्या किया? पूरी गवर्नमेंटल जो कह सकते हैं फ्रेमवर्क है, दैट इज टुडे इन अवर डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री बॉडीज, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव वो बॉडी गवर्नमेंट की जो सारे डिसीजंस लेती है, एग्जीक्यूटिव जो डिसीजंस को एग्जीक्यूट करते हैं जो कि सिविल सर्वेंट्स है हमारे, और जुडिशरी हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए हमारे कंट्रीज में क्या है, हमारे कंट्रीज में जुडिशरी है। तो ये जो कंसेप्ट था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी गवर्नमेंट का, ये आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के फिलोसोफर से, दैट इज मॉन्टेस्क्यू से। तो इन तीन फिलोसोफर्स ने मिडिल क्लास के आइडियाज को और बूस्ट किया और सपोर्ट किया, और लोग इंस्पायर हुए और धीरे धीरे फिलोसोफर्स की बुक को पढ़ने लगे, उनको डिस्कस करने लगे। सलून्स में, कॉफी शॉप्स में, हर जगह जो है फिलोसोफर्स के आइडियाज को डिस्कस किया जाता था। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, दे कांट रीड एंड राइट, उनको जो है रीड करके सुनाया जाता था ताकि उनमें जो है रिवॉल्यूशनरी फीलिंग डेवलप हो सके, नेशन स्टेट की फीलिंग डेवलप हो सके, दे कैन रिवॉल्ट अगेंस्ट द लुइस 16। फर्दर जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं बेटा आज, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। ओके बेटा, द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन सेकंड पार्ट है, पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं बेटा। तो what happened? We discussed that there is a empty treasury of Louis XVI and a subsistence crisis was there in France. तो ऐसे में अब लुइस 16 को जो है हमने पढ़ा था कि लोन लेना पड़ा, फिर उस पर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, एम्प्टी ट्रेजरी है। तो नाउ लुइस 16 डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस फर्दर मोर टैक्सेस टू थर्ड स्टेट पीपल। ऑलरेडी वो टैली, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो जनरल पब्लिक पुअर पीपल पे कर ही रहे हैं, बट अब वो क्या प्लान कर रहा है कि एक नई तरीके का टैक्स इंट्रोड्यूस करना चाहता है ताकि वो एम्प्टी ट्रेजरी को रिकवर कर सके, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को जो है पूरा कर सके। तो फॉर रिकवरिंग दैट ही वांट टू इंट्रोड्यूस न्यू टैक्स। अब फ्रांस में उस समय ये रूल्स होते थे बेटा कि कोई भी नया टैक्स इंट्रोड्यूस करना है तो किंग अपनी मर्जी से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता था। फॉर दैट ही हैज टू कॉल वन मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल। एस्टेट जनरल मींस ये जो तीनों स्टेट हैं, इन तीनों स्टेट्स के जनरल होते थे, रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, लोग होते थे, उनकी मीटिंग बुलाना जरूरी होती थी। अब ये मीटिंग कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, दैट किंग विल डिसाइड अलोन। वो लुइस 16 डिसाइड करेगा, वो जनरल पब्लिक डिसाइड नहीं करेगी। बट मीटिंग अगर कुछ नया पॉलिसी बनानी है, नया टैक्स लगाना है, तो उसके लिए मीटिंग बुलाना कंपल्सरी होता था उस समय। तो जो लास्ट मीटिंग हुई थी फ्रांस में, दैट वाज इन 1614 सेंचुरी में हुई थी। और अब इतने टाइम बाद अब मीटिंग होनी जा रही है ऑन 5 मई 1789। 1614 के बाद ये मीटिंग कभी भी नहीं बुलाई गई थी स्टेट जनरल की, बट अब क्योंकि जो है ट्रेजरी पूरी खत्म हो गई है तो उसको रिकवर करने के लिए, न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस करने के लिए मीटिंग बुलाई जा रही है
1789 देख कर कुछ याद आ रहा है? चैप्टर का फर्स्ट जो पेज अपन ने पढ़ा, जो बेस्टाइल तोड़ा गया, फोर्ट्रेस प्रिजन, वो कब तोड़ा गया? 1789। तो स्लोली आप उस इंसिडेंट्स के पास पहुंच रहे हैं बेटा। तो 1789 जो है वर्सलीज में, वर्सलीज की एक बहुत ही रेस्प्लेंडेंट, अपन कह सकते बहुत ही आलीशान, बहुत ही खूबसूरत हॉल में मीटिंग बुलाई जाती है स्टेट जनरल की। अब स्टेट जनरल्स में कैसे जाते हैं? फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर्स जाएंगे, सेकंड स्टेट के 300 मेंबर्स जाएंगे और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स जो है इस मीटिंग को अटेंड करने जाएंगे। क्यों? इफ यू रिमेंबर, मैंने कहा था कि ये जो पॉपुलेशन है सिर्फ 10% है और रिमेनिंग 90% पॉपुलेशन किसकी है? सिर्फ थर्ड स्टेट की। इसलिए थर्ड स्टेट के डबल लोग जो है इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाएंगे। ठीक है, अब जो है इसमें मीटिंग में बैठने का क्या सिस्टम होता है कि इन द मिडल जो है किंग बैठेगा। ठीक है, किंग के इस साइड में सारे फर्स्ट स्टेट के लोग बैठेंगे, इस साइड में सारे सेकंड स्टेट के लोग बैठेंगे। थर्ड स्टेट के 600 पीपल्स के लिए बैठने की कोई जगह नहीं होती, वो इनके पीछे जो है यहाँ पे खड़े होकर ये मीटिंग अटेंड करते हैं। दे डोंट हैव सिटिंग प्लेस फॉर दैट। ठीक है, अब जो है फर्दर इसमें ये होता है कि अब वोटिंग कैसे होगी? फर्स्ट स्टेट के लोग जो है एक वोट करेंगे सारे मिलकर, सेकंड स्टेट के एक वोट करेंगे और थर्ड स्टेट के लोग जो है मिलकर एक, टोटल 3 वोट डाले जाते हैं फर्स्ट सेकंड स्टेट से, चाहे जितने भी लोग हो एक एक वोट होता है। अच्छा, अब ये जो थर्ड स्टेट के 600 पीपल्स है ना बेटा, इसमें वुमेन्स को एंट्री नहीं दी जाती थी और पुअर जो पीजेंट्स, आर्टिजन, बिल्कुल जो गरीब लोग हैं उनको इस मीटिंग में एंट्री नहीं दी जाती थी। ये 600 पीपल जो मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स, लॉयर्स, डॉक्टर, जो हमने मिडिल क्लास पढ़ा ना, तो वो जो हाईएस्ट कैटेगरी के लोग थे थर्ड स्टेट के, वही सिर्फ इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। पुअर पीपल और वुमेन्स तो बिल्कुल भी नहीं, उस समय वुमेन्स को कोई वोटिंग राइट्स या किसी तरह के कोई राइट्स नहीं दिए जाते थे। ठीक है, तो ये इस तरीके से मीटिंग हुई। 300 पीपल, 600 पीपल, ओनली मिडिल क्लास और हाई कैटेगरी पीपल्स। अब जो पुअर पीपल्स थे, वुमेन्स थे, उनकी भी तो कुछ शिकायतें थी, वो चाहते थे कि मीटिंग में हमारी बात को भी डिस्कस किया जाए। तो उन लोगों को क्या कहा जाता था? वो लेटर लिखते थे, ठीक है, जिनको मीटिंग में रीड किया जाता था। उस समय जब ये मीटिंग हुई तब 40,000 लेटर्स पुअर पीपल थे, क्योंकि मैंने क्या बताया 90% पॉपुलेशन किसकी है? थर्ड स्टेट की। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, तो 40,000 लेटर्स जो है पुअर पीपल्स ने लिखकर अपनी ग्रीवेंसेस, अपने दुखों को, अपनी प्रॉब्लम्स को लिखकर उन लेटर के थ्रू इस मीटिंग में पहुंचाया था। बैठने का क्या तरीका था मैंने बता दिया, थर्ड स्टेट की बैठने की जगह कुछ नहीं थी। अब जब वोटिंग होने जाते हैं तो इस बार भी जो राजा, पहले जो वोटिंग सिस्टम था कि एक एक वोट तीनों स्टेट से आएगा, इस बार थर्ड स्टेट के लोग जो है इस वोटिंग सिस्टम को मानने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहां से इंस्पायर होकर आए? फिलोसोफर्स से। और फिलोसोफर ने क्या आइडिया दिया है? 1 पर्सन 1 वोट। रॉज्यू ने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या दिया था आइडिया? 1 पर्सन 1 वोट और इक्वल वैल्यू। तो लोग इंस्पायर हुए। दिस टाइम दे डिमांडेड 1 पर्सन 1 वोट इक्वल वैल्यू के। अब अगर वोटिंग होगी किसी भी डिसीजन को लेकर, कौन सा डिसीजन, कि नया टैक्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं चाहिए थर्ड स्टेट के लोगों पे, तो जब राजा जो है इनकी इस डिमांड को, किंग लुइस 16 refused to agree with the demand of third state people to accept the 1 person 1 vote equal value, तो ये थर्ड स्टेट के लोग क्या करते हैं? गुस्से में जो है इस मीटिंग को आधा छोड़ के दे वॉकड आउट फ्रॉम द मीटिंग और वर्सलीज के टेनिस कोर्ट में 20 जून को वो लोग कलेक्ट होते हैं। मीटिंग हो रही है 5 में और वो मीटिंग छोड़ के अधूरा कोई डिसीजन नहीं निकलता है कि टैक्स इंट्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा। राजा की बात मानने से वो मना कर देते हैं, वहां से वॉकआउट होते हैं और फिर बाद में 20 जून को वापस वो सारे लोग थर्ड स्टेट के इकट्ठे होते हैं वर्सलीज में ही, जहाँ पे मीटिंग हुई थी। वहां का एक टेनिस कोर्ट है हॉल के बाहर, वहां पे इकट्ठे होते हैं और अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं और वो बोलते हैं कि हम फ्रांस की आवाज है, हम फ्रांस की जनता है, हम मैक्सिमम पॉपुलेशन है, हम नेशनल असेंबली। और दिस टाइम दे डिसाइडेड कि हम तब तक डिस्पर्स, तब तक अलग नहीं होंगे, हम एक साथ रहेंगे जब तक कि हम राजा की पावर को लिमिटेड नहीं कर देते और जब तक हम फ्रांस का नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते। क्या नहीं कर देते? जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते और जब तक हम राजा जो मोनार्क सारी पावर लेकर बैठा है अननेसेसरी, उसको कम नहीं कर देते, तब तक हम अलग नहीं होंगे। ठीक है, अब उनके इस नेशनल असेंबली के आइडियाज को सपोर्ट करते हैं मिरेबियो और एबीसीज। मिरेबियो नोबल फैमिली में से है, मैंने बताया था 3 स्टेट है, तो सेकंड स्टेट कौन था? नोबल्स थे, रिच पीपल। और एबीसीज एक प्रीस्ट मतलब क्लर्गी जो चर्च फादर है। दोनों फर्स्ट और सेकंड स्टेट के होने के बाद भी किसको सपोर्ट कर रहे हैं? थर्ड स्टेट के।
अब यहाँ पे मैंने बताया कि थर्ड स्टेट चाहता था कि 1 पर्सन 1 वोट और इक्वल वैल्यूज हो। क्यों? क्योंकि थर्ड स्टेट के लोगों को पता था कि फर्स्ट और सेकंड में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके सपोर्ट में, तो ऑब्वियसली जब 1 पर्सन 1 वोट होता तो ज्यादा वोट कहाँ पे जाते हैं? यहाँ पे। तो कोई टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं होता। पर अगर एक एक वोट आएगा तो ये दो स्टेट्स तो कौन है? राजा के फेवर में। तो ऑब्वियसली 2 वोट अगर राजा के फेवर में आ जाएगा तो ये तो ऑब्वियसली हर बार हारते थे और इस बार भी हार जाएंगे। बट अगर 1 पर्सन 1 वोट आएगा तो ये 600 वोट, और इनमें भी कुछ दयालु लोग थे। दे आर हैविंग फीलिंग फॉर द थर्ड स्टेट कि थर्ड स्टेट के साथ जो एवरी टाइम रॉन्ग होता है, रॉन्ग टैक्सेस लगाए जाते हैं, या फर्स्ट और सेकंड स्टेट को अननेसेसरी बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। प्रिविलेजेस शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट्स, इंसान की काबिलियत के हिसाब से होने चाहिए। तो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट से बिलोंग करने वाले मीराबी और एबीसी सपोर्ट करते हैं, और नेशनल असेंबली की जो मीटिंग होती है उनके हेड एज ए हेड जो है रोल प्ले करते हैं इन वर्सलीज ऑन 20 जून। और उसके अलावा मीराबी एक पैम्पलेट, एक कह सकते हैं एक लेटर भी लिखते हैं व्हाट इज थर्ड स्टेट, जिसमें वो थर्ड स्टेट्स के फेवर में बहुत सारे पॉइंट्स लिखते हैं, और इस तरीके से दे सपोर्टेड द थर्ड स्टेट पीपल। अब जहां एक तरफ तो फ्रांस में जो मिडिल क्लास लोग ये बिजी हैं, दे आर बिजी इन फ्रेमिंग द नेशनल असेंबली, दे आर बिजी इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं जो सिटी, इनसाइड सिटी क्या कंडीशन है? इनसाइड सिटी सबसिस्टेंस क्राइसिस की वजह से, सीवियर कोल्ड होने की वजह से, सारा जो अपन कह सकते हैं फील्ड्स या फार्मिंग या क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होने की वजह से जो है फूड शॉर्टेज हो जाती है, सबसिस्टेंस क्राइसिस हो जाता है, फूड प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो जो वुमेन्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, वो फूड शॉप्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें खड़े लगा के बैठे हैं, और ऐसे में फूड शॉपकीपर्स क्या करते हैं? जो उनका सामान है उसको छुपा देते हैं, होर्ड कर देते हैं। किस लालच में? कि जब प्राइस राइज होगा तब हम सामान को बेचेंगे। तो ऐसे में गुस्से में आके वुमेन्स और जो अदर पीपल्स जो फूड स्कैर्सिटी से डील कर रहे हैं, जिनको खाने को ही नहीं मिल रहा है, वो शॉप्स पे अटैक करना शुरू हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, रिवोल्ट स्टार्ट कर देते हैं। ये तो है सिटी की हालत के। एक तरफ लोग रिवोल्ट कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग क्या कर रहे हैं? दे आर फाइटिंग विद द फूड स्कैर्सिटी एंड ऑन विलेजेस। अब विलेजेस की बात करेंगे तो सिटी का सिनेरियो है, एंड व्हाट अबाउट विलेजेस? विलेजेस में भी र्यूमर स्प्रेड हो जाते हैं कि जो लैंडलॉर्ड्स है, ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स है, दे आर सेंडिंग देयर ब्रिगेड, दे आर सेंडिंग देयर आर्मीज टू अटैक ऑन द पुअर पीजेंट्स, लैंडलेस पीजेंट्स। तो जब लैंडलेस पीजेंट्स को ये पता चलता है, पुअर पीजेंट्स को, कि द ब्रिगेड्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स आर कमिंग टू अटैक ऑन देम, तो वो क्या करते हैं? वो खुद ही, वो लोग अटैक करें इससे पहले यही जो है, जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फार्मिंग के, हो और डिगिंग के लिए, अपन जो ये फावड़ा खेती ये सारे डिस्कस करते हैं ना बेटा, जो फार्मिंग में यूज होती हैं चीजें, वो सारे लेकर वो क्या करते हैं? वो चैटॉक्स पे अटैक्स कर देते हैं। चैटॉक्स क्या है? ये न्यू वर्ड में पेज नंबर 9 पे आपके दे रखा है। चैटॉक्स वो होते हैं जहाँ पे जो है ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, बड़े बड़े जमींदार हैं, जिनके घर बने हुए हैं, ऑफिसेस बने हुए हैं, वो पूरा जो एरिया जहाँ पे रिच पीपल रहते हैं उसको बोलते हैं चैटॉक्स। तो जब ऐसे र्यूमर्स स्प्रेड होते हैं कि लैंडलॉर्ड्स पुअर पीपल्स को मारने आ रहे हैं, तो पुअर पीपल्स, पुअर पीजेंट्स क्या करते हैं? वो अटैक कर देते हैं लैंडलॉर्ड्स पे, उनके चैटॉक्स पे, और जो लैंडलॉर्ड्स है वहां से भागकर नेबरिंग कंट्रीज में जो है चले जाते हैं, वहां पे जो है रिफ्यूजी बच जाते हैं। तो जब किंग लुइस 16 को पता चलता है कि एक तरफ तो सिटीज में, टाउन्स में वुमेन्स अटैक कर रही है शॉप्स पे, एक तरफ जो है विलेजेस में पीजेंट्स अटैक कर रहे हैं, एक तरफ जो है मिडिल क्लास लोगों ने नेशनल असेंबली बना दी है, उनके खुद के लोग जो है मीराबी एपिसिस जैसे उनके अगेंस्ट में हो गए, तो जो है लुइस 16 को कहीं ना कहीं रियलाइज हो जाता है कि अब भी अगर मैं अपनी पावर को कम नहीं करूंगा, या जो नेशनल असेंबली फॉर्म की है मिडिल क्लास लोगों ने, उनको रिकॉग्निशन नहीं दूंगा, तो ये लोग मेरे अगेंस्ट में हो जाते हैं। एंड फाइनली ही अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली, प्लस जो है ही एग्रीड टू रिड्यूस हिज पावर, अपनी पावर कम करने के लिए वो मान जाते हैं और नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर देते हैं। और फिर फर्दर जो है 4 अगस्त 1789 को जब नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन मिल जाता है, तो एक जो है
लॉ पास होता है, डिग्री पास होती है, उस लॉ के अंडर में क्या होता है, जो फ्यूडल ड्यूज है दे आर गोइंग टू बी अबॉलिश्ड, और जो चर्च फादर्स के बाद प्रॉपर्टीज है वगैरह है बाय बर्थ प्रिविलेजेस है उन सबको अबॉलिश किया जाएगा। एंड व्हेन दे अबॉलिश बाय बर्थ प्रिविलेजेस ऑफ क्लर्गी एंड नोबिलिटी पीपल, द गवर्नमेंट गॉट 2 बिलियन लाइवर्स इन देयर अकाउंट। जो उन्होंने अपन ने पढ़ा था कि लुईस 16 ने कितना लोन दिया था, 2 बिलियन लाइवर। ये 2 बिलियन लाइवर कहां से निकला, चर्च फादर्स के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी थी जिनको बिना बात के बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिलता जा रहा था, तो चर्च फादर्स के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी निकल आई जब ये लॉ पास हुआ फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश करने का, बाय बर्थ प्रिविलेजेस खत्म कर दिए। तो फाइनली जो है नेशनल असेंबली को, मिडिल क्लास लोगों को, थर्ड स्टेट के लोगों को रिकॉग्निशन मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की इजाजत मिल गई, राजा की पावर जो लुईस 16 है वो रिड्यूस हो गई, क्लर्गी पीपल, नोबिलिटी पीपल्स के जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस थे, जो फ्यूडल ड्यूज थे, वो सारे जो पुअर पीपल्स के वो खत्म कर दिए गए। और फाइनली अब रूल कहाँ पे आ गया, राजा तो था ही, राजा नहीं गया बेटा, बट मिडिल क्लास लोगों को भी गवर्नमेंट में इन्वॉल्व कर दिया गया। Okay, our next topic is France become a constitutional monarch. What I told you कि National Assembly got recognition from the King Louis 16. Now King Louis 16 agreed to share his power with the National Assembly. So when he agreed to share his power with the National Assembly ना, तो there came constitutional monarchy in France. Means the constitution that is made or drafted by National Assembly of third state people. That constitution is accepted by monarch. So at that time, before only monarchical form of government was there under Louis 16, and after the recognition of National Assembly, there came constitutional monarchy. मतलब जो रूलर, जो गवर्नमेंट फ्रेम होकर आई फ्रांस में, that is constitutional monarchy. उस समय फिर उसको बोला गया. Now this constitutional monarchy, under constitutional monarchy, जो National Assembly was busy in drafting the constitution ना बेटा, तो National Assembly completed the framing or drafting of its constitution in 1791. 1791 तक उनको टाइम लग गया, 89 से लेके 91 2 इयर्स लग गए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते बनाते, फ्रेम करते करते, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, पूरी कंट्री उस हिसाब से रन करेगी। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे नेशनल असेंबली का मेन आइडिया क्या था, टू लिमिट द पावर ऑफ द रूलर, टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, टू लिमिट द पावर ऑफ द लुईस 16 की पावर को कम करना, जनरल सिटीजन्स को राइट दिलाना, जनरल सिटीजन्स को पावर दिलाना, प्लस जो है गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो मॉन्टेस्क्यू ने आइडिया दिया था फिलोसोफर ने, वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इस आइडिया को इंक्लूड किया, गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स बनाए ताकि जो है पावर एक हैंड में न जाके अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग रहें जो अलग अलग तरीके के डिसीजंस ले, तो जनरल पब्लिक भी इंक्लूडेड रहेगा और मोनार्क भी इंक्लूडेड रहेगा। तो इस तरीके से इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। फर्दर आप पेज नंबर 10 पे बेटा एक आप ये देखोगे पिक्चर, ब्लू बॉक्स देखेंगे आप, ठीक है। अब इसमें कैसे वोटिंग होती थी फ्रांस में, ये बता रही हूँ मैं इस ब्लू बॉक्स में। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे बेटा रीड करने। सबसे पहले फ्रांस में जो है सिटीजन्स की कैटेगरी, जो थर्ड स्टेट के लोग थे जो वोटिंग करेंगे उनकी कैटेगरी बनाई गई। तो इस तरीके से लोग डिवाइड हो गए एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स में, एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स कौन, पहले मैं ये बता रही हूँ। तो उस समय फ्रांस की पॉपुलेशन थी, आपने सब्सिस्टेंस क्राइसिस में देखा हो तो 28 मिलियंस। अब एक्टिव सिटीजन मींस वोट करने के लिए आज जो हमारी एज है, हमारी एलिजिबिलिटी एज क्या है कि इफ वी आर 18 इयर्स ओल्ड देन वी कैन गिव द वोट। उस समय क्या डिसाइड किया नेशनल असेंबली में कि जो 25 इयर्स का होगा और मैन होगा, अभी भी लोगों की थिंकिंग इतनी वाइड नहीं हुई थी उस सेंचुरी में कि वो वुमेन की बात करें। वुमेन्स वर नॉट हैविंग वोट, वुमेन्स का डिस्कशन ही नहीं था कि वुमेन्स को वोटिंग अधिकार मिलेगा, सिर्फ मैन की बात हो रही है। उन मैन में भी जो 25 इयर्स ऑफ एज है, प्लस जो कि अपने 3 दिन का जो वो अर्निंग वेज जो कमाई कर रहे हैं, वो जो वर्क करते हैं डे टू डे, 3 डेज के बराबर अगर वो रेवेन्यू टैक्स पे करने में सक्षम है, मतलब इतना वो अर्न कर लेते हैं कि अपने पूरे मंथ की अर्निंग में से 3 डेज की जो अर्निंग है अगर वो एज ए टैक्स पे कर सकते हैं, प्लस वो मैन है, प्लस वो 25 इयर्स का है, तब तो वो एक्टिव सिटीजन होगा। अगर 25 ईयर से जो नीचे की पॉपुलेशन थी, जो चिल्ड्रंस थे, जो वुमेन्स थे, वो तो वैसे भी एक्टिव सिटीजन नहीं थे, प्लस वो मैन जो 25 इयर्स के तो हैं बट टैक्स
पेयर नहीं है, टैक्स पे नहीं करने में सक्षम है, तो उनको भी क्या बोला गया, पैसिव सिटीजन्स। तो वोटिंग राइट किसके पास गया, एक्टिव सिटीजन्स के पास। एक्टिव सिटीजन्स कौन थे, जो कि मैन है, 25 इयर्स के हैं और जो 3 डेज के इक्वल जो अपनी सैलरी को एज ए टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे करने में कैपेबल है, तो दे आर कॉल्ड एज एक्टिव सिटीजन्स, और बाकी सबको रख दिया गया पैसिव सिटीजन्स में। ठीक है, अब ये एक्टिव सिटीजन्स वोट करेंगे इलेक्टोर्स के लिए। इलेक्टोर्स कौन, अभी इन एक्टिव सिटीजन्स में भी जो और रिच पीपल हैं, जो और ज्यादा टैक्स पे कर सकते हैं, उनको बनाया गया इलेक्टोर्स। इलेक्टोर्स वोट करेंगे नेशनल असेंबली, लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए, लेजिस्लेटिव बॉडी जो डिसीजन लेगी, फिर नेशनल असेंबली और फिर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे बैठे करके, और इस तरीके से पूरा वोटिंग सिस्टम रहेगा। मेन बात आपको एक्टिव और पैसिव सिटीजन समझने हैं, जो मैंने आपको बता दिया। एक्टिव सिटीजन मैन हु कैन पे टैक्स equals to his 3 days salary and who is 25 years and above, he is counted as a active citizen, he will be having the right to vote। ठीक है, फर्दर हम देखेंगे इसमें, मैंने ये बताया कि नेशनल असेंबली क्यों बना रही थी कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने क्या इंक्लूड किया, एक तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बॉडी। वोटिंग किस तरीके की होगी ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा उन्होंने, प्लस जो है मेन जो है नेशनल असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता था राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। पेज नंबर 11 में सोर्स सी ब्लू बॉक्स दे रखा बेटा आपका, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैंस एंड सिटीजन्स। यहाँ से जो है कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता था, ये आप खुद रीड करना। बेसिकली मेन जो राइट्स इंक्लूड किए गए वो मैं बता रही हूँ आपको। उस कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। कौन से राइट, राइट टू लाइफ, कि एवरीबॉडी इज हैविंग द राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एवरीबॉडी इज फ्री टू स्पीच। देन फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉज। ये नहीं कि रिच के लिए अलग लॉज है, पुअर के लिए अलग है। ठीक है, इन सब राइट्स को बोला गया नेचुरल और इनएलिएनेबल, मींस जो भी फ्रांस में पैदा होगा उसको बाय बर्थ ये राइट्स मिल जाएंगे। इनएलिएनेबल राइट है, नॉन सेपरेबल राइट्स है बाय बर्थ हर ह्यूमन बीइंग को, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, हर किसी को ये राइट बाय बर्थ दिए जाएंगे। बाकी जो राइट्स है ये आप पढ़ना और ये क्वेश्चन आप नोटबुक में बेटा करना। दिस इज योर होमवर्क कि व्हाट आर द राइट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। अब यहाँ पे आपका सेकंड पॉइंट कंप्लीट है बेटा। उसके अलावा पेज नंबर 12 और 13 पे ये साइंस दे रखे हैं, ये भी इंक्लूड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। जो लोग रीड और राइट नहीं कर पाते थे ना बेटा, उसके लिए रिवॉल्ट टाइम में ये साइंस यूज किए गए, ताकि वो साइंस को समझकर जो है फर्दर उनमें फीलिंग नेशन स्टेट की डेवलप की जाए। क्या क्या साइन है देखो फटाफट बता देती हूँ मैं। पेज 12 पर द ब्रोकन चेन were used to fetter slaves. A broken chain stands for the acting of free. broken chain से लोगों को ये समझ में आता था कि अब वो फ्री है, अब किसी मोनार्क के अंडर में नहीं है। फर्दर द बंडल ऑफ रॉड का बंडल मीन्स यूनिटी, स्ट्रेंथ, के लोग इकट्ठे होकर वॉइस रेज करेंगे तो उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। देन आई विद रेज, the seeing I stand for knowledge, the rays of the sun, कि अब धीरे धीरे लोग एजुकेटेड होने लगे थे, सही गलत में समझने लगे थे, तो this sign shows. Then a spectre, royal symbol, मतलब मैंने कहा ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है बेटा, तो राजा भी रहेगा तो ये राजा का सिंबल, इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। देन है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, सिंबल ऑफ इटर्निटी, रिंग हैज नेवर, मतलब अब जो ये फ्रांस में जो स्टार्ट हुआ है इक्वलिटी अभी कभी खत्म नहीं होगी। देन है रेड कैप worn by slaves upon picking, जब स्लेव जो फ्री हो गए थे लोग, तो फ्री होने के बाद उन्होंने रेड कैप पहन के अपनी आजादी को शो किया था। फर्दर विंग्ड वुमेन, नहीं फर्दर ब्लू व्हाइट और रेड कलर, ये फ्रांस के नेशनल फ्लैग के कलर्स थे। फिर एक विंग्ड वुमेन मीन्स स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, जैसे बेटा अपने इंडिया में अपन भारत को माता मानते ना, तो वहां पे ये सिंबल था। ठीक है, फिर है लॉ, नीचे सबसे लास्ट में दे रखा है लॉ टेबल, तो ये टेबल इक्वालिटी को शो कर रही है, ह्यूमन राइट्स को शो कर रही है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ ये शो कर रही है। तो यहाँ पेज नंबर 13 तक आप रीड करना, कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो इवनिंग में 6 to 8 PM आप पूछना, और फर्दर और क्वेश्चंस में देख लियो, अगर होमवर्क में होंगे तो आई विल गिव यू। अभी यही एंड है, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पेज नंबर 14 थर्ड पोर्शन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बेटा।